الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نبي الأمي المزكي المعلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي. جب میں یہ پڑھتی ہوں prayers of attaining knowledge یعنی کہ حصول علم کی دعائیں انشاءاللہ سب جو ہے پڑھا کریں، میرے ساتھ پڑھا کریں. میں دھیرے دھیرے کر کے پڑھوں گی تو میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمین. الحمدللہ، جیسے کہ ہم نے لاسٹ منڈے جو ہے الحمدللہ حرف تہجی کو سٹارٹ کیا تھا، حرف تہجی کو سٹارٹ کیا تھا اور میں بتائی تھی کہ حرف تہجی جو ہے کتنے ہیں. حرف تہجی جو ہے 29 ہے. ایک منٹ. حرف تہجی 29 ہے. حرف تہجی الف سے یا تک 29 ہے اور یہ جو ہے 3 حصوں میں بٹ گیا ہے، یعنی کہ حرف تہجی کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اس کو کیوں ایسا کرتے ہیں، اس میں 3 حصوں میں کون سے لیٹرز آتے ہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. دیکھیں یہاں پر دیکھیں، پہلا حصہ جو ہے حرف تہجی 29 اور اس میں سے 3 میں ڈیوائڈ کیا ہے ان میں سے، اور 3 میں سے پہلا والا جو ہے موٹے پڑے جانے والے لیٹرز. حرف تہجی 29 اس میں سے موٹے پڑے جانے والے لیٹرز ہیں، موٹے پڑے جانے والے حرف ہیں. دوسرا جو ہے باریک پڑے جانے والے لیٹرز ہیں اور کبھی موٹے کبھی باریک پڑے جانے والے لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، 3 طرح کے حرف ہوتے ہیں حرف تہجی میں. حرف تہجی میں کتنے رقم کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں؟ 3 ٹائپس. موٹے پڑے جانے والے، باریک پڑے جانے والے، کبھی باریک اور کبھی موٹے پڑے جانے والے. اچھے سے یاد کر لیں، اچھے یاد کر لیں. اور حرف تہجی کو ایک تو موٹے پڑے جانے والے لیٹرز کو جو ہے برابر دیکھنا ہے، باریک پڑے جانے والے لیٹرز کو باریک پڑھنا ہے، کبھی موٹے کبھی باریک پڑے جانے والے حرفوں کا حق اس کو صحیح سے ادا کرنا ہے. اور دوسرا جو ہے مخرج کے ساتھ پڑھنا ہے. حرف تہجی کو دیکھیں، غور کریں، جو یہ تین طرح کے حرفوں کو 3 طرح سے حق اس کا ادا کرنا ہے اور مخرج بھی لے کر چلنا ہے، مخرج بھی لے کر چلنا ہے. یہ اچھے سے یاد کر لیں اور لکھ کر رکھ لیں
जो भी नए हैं स्टूडेंट्स उनको मैं कहती हूँ कि लिख के रख ले, इसी तरह से एक फ्लो चार्ट बनाए और लिख के रख ले, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें सूरतुल अलक के स्टार्टिंग के आयतों में क्या कहा, इक़रा के बाद अल्लाह सुब्हान तआला ने अल्लमल यानी कि कलम कलम इस्तेमाल हुआ वहां पर दूसरे आयतों में कि पढ़ो, उसके बाद लिख लिया करो ताकि आप ना भूलें। ठीक है, समझ में आया? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब यहाँ पर देखें, मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फ, मेरे साथ बोले, सब बोले, हुर्फ़े तहज्जी 29 है, 29 है, मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फ, बारीक पढ़े जाने वाले हुर्फ, कभी मोटे, कभी बारीक पढ़े जाने वाले हुर्फ। हुँ? ठीक है? समझ में आ गया? अच्छे से उसको 1 से 5 टाइम या 10 टाइम प्रैक्टिस करके अपने आप में क्या कर लें वो, अपने आप में इम्प्लीमेंट कर लें कि 3 तरह के हुर्फ होते हैं हुर्फ़े तहज्जी में, मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फ, बारीक पढ़े जाने वाले हुर्फ और कभी बारीक, कभी मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फ। और मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फ कितने हैं देखेंगे चलें, 7, 7 मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फ़े तहज्जी में 7 होते हैं, 7 कौन से? ख़, सॉद, दौद, तौ, ज़ौ, गैन, क़ाफ़। बोले मेरे साथ, हुर्फ़े तहज्जी में से 7 लेटर ऐसे हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं। इसको माउथफुल लेटर भी कहा जाता है। ख़, सॉद, दौद, तौ, ज़ौ, गैन, क़ाफ़। ठीक है? समझ में आया? सबको अच्छे से समझ में आया? अब दूसरी तरफ तो चलते हैं। बारीक पढ़े जाने वाले हुर्फ जो है ना, बोलो जी, 19 है। ठीक है, मेरे साथ बोले 19 है। हुर्फ़े बारीक पढ़े जाने वाले हुर्फ जो है 19 है। कौन से? ब, प, त, जीम, ह, दाल, ज़ैल, ज़, सीन, शीन, ऐन, फ, कफ, मीम, नून, वाव, ह, हमज़ा, या। ये अच्छे से समझ में आ गया आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इसको हुर्फ़े मुस्तइलिया कहते हैं, मोटे पढ़े जाने वाले हुर्फ़ों को, मुस्तफ़िला जो है बारीक पढ़े जाने वाले हुर्फ़ों को कहा जाता है। कभी और एक जो है बेसिक, यानी कि जो बेसिक है अभी जो है बेसिक लेवल में है उनको कहूँगी कि मोटे पढ़े जाने वाले लेटर्स को जो है तफ़ख़ीम कहती, और बारीक पढ़े जाने वाले लेटर्स को तरक़ीक़, तरक़ीक़ बारीक पढ़े जाने वाले लेटर्स को, ठीक है? और कभी मोटे, कभी बारीक पढ़े जाने वाले हुर्फ कौन से हैं? 3 हुर्फ हैं। कौन से उसमें? अलिफ, लम और रा। हुँ? अलिफ अलिफ, लैम और र। ये कब मोटा पढ़े जाते हैं, कभी मोटे, कभी बारीक पढ़े जाने वाले लेटर्स बोले तो क्या? इंशाअल्लाह हम आगे चलकर देखेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है? इतना सा अच्छे से पढ़ लीजिए, लिख कर रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको लिख कर इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में जो है आपको आसानी हो जाएगी। इसको आप यानी कि अप्लाई करेंगे, यानी कि इसको अच्छे से समझ जाएँगे, ठीक है? तो चलते हैं अभी लेसन की तरफ। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक जो है हुर्फ़े तहज्जी, यानी कि हुर्फ़े तहज्जी को जाना और मखरज को गए थे, मखरज को पढ़ा हमने। मखरज के अक़साम को देखा हमने। कौन बताएगा मखरज के अक़साम, कौन बताएगा? जी, बताएँ। देखिए यहाँ पर है 5
मखरज के अक़साम यानी कि मखरज के 5 बुनियादी अक़साम हैं, 5 types. The 5 major areas are the empty space in the mouth, al-jawf यानी कि मुंह का खाली हिस्सा, मुंह का खाली हिस्से को अल-जौफ कहते हैं, the empty space in the mouth, ठीक है। और the throat यानी कि अल-हलक, अल-हलक, अल-हलक यानी कि throat letters, गले को कहती, गला, हलक, गला। और तीसरा जो है अल-लिसान, अल-लिसान यानी कि जुबान, हमारी जुबान को कहा कहते हैं क्या, लिसान, द टंग, ठीक है, समझ में आई बात। अशफतान, अशफतान, द टू लिप्स, द टू लिप्स, ठीक है, यानी कि दोनों होंठों को अशफतान कहते हैं, दोनों होंठ, ठीक है। और पांचवा जो है अल खैशूम, द नोज, हमारी नाक, अल खैशूम अरबिक में अल जौफ किसको कहते हैं, मुंह का खाली हिस्सा, अल हलक गला, अल लिसान जुबान, अशफतान यानी कि जुबा यानी कि दोनों होंठ, अल खैशूम जी नाक, हमारी नाक। जी नाजिया आपने सही कहा कि अल जौफ, बोले सब मेरे साथ बोले, एक मर्तबा सब बोले, अल जौफ मुंह का खाली हिस्सा, अल हलक गला, अल लिसान जुबान, अशफतान दोनों होंठ, अल खैशूम नाक, ठीक है, समझ में आई बात सबको। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं आगे की तरफ। जी जी, यहाँ पर देखिए क्लियरली यहाँ पर बताया जा रहा है, अल खैशूम, अल खैशूम नाक, अल जौफ मुंह का खाली हिस्सा, अल हलक गला, और अल लिसान, अल लिसान का मतलब जुबान, अशफतान दोनों होंठ, समझ में आई बात। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला आपका समझना बेहद आसान कर दे। चले आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल जौफ मुंह का खाली हिस्से में कौन से लेटर्स आते हैं, अलिफ, या और वाव, अलिफ, या और वाव, ये तीनों लेटर्स जो है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब देखते हैं ये अल हलक, अल हलक को हमने देखा था, अल हलक को भी देखा था, एक मर्तबा और एक मर्तबा देख लेते हैं। हुर्फे तहज्जी 29 है, अलिफ, वाव और या को हमने देखा था। जी मुकद्दरा यानी कि अल जौफ को अल जौफिया कहते हैं, इंशाल्लाह आगे चलकर मैं बताऊंगी उसके नेम्स और क्या क्या है, उसके नाम क्या हैं। अभी देखते हैं अल हलक की तरफ। अल हलक, अब अल हलक जो है गला, गले के 3 हिस्से, जैसे कि मैं बताई आपको, गले के 3 हिस्से ही, गले के 3 हिस्से हैं यहाँ पर, गले के 3 हिस्से ही। तो यहाँ पर गला है, ये गला है, और इसमें 3 हिस्से होकर हैं। कौन सा हिस्सा देखते हैं, अक्सल हलक, ये नीचे का, गले का नीचे का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा है गले का। हमजा हा, हमजा हा इससे अदा होने वाले हैं, यानी कि अक्सल हलक यानी कि मुंह से दूर का हिस्सा, यानी कि गले से भी दूर का हिस्सा।
یہ کیا ہے؟ باٹم آف دا تھروٹ، گلے کے نیچے کے حصے سے. جب ہم گلے کے نیچے کے حصے میں ایک انگلی رکھ کر حمزہ ہا پڑھیں گے تو وائبریٹ ہمیں سنائی ہوگا، یعنی کہ سنائی دے گا کہ ہمارا سینہ جو ہے یعنی کہ سینے سے آواز آئے گی ہا حمزہ ہا حمزہ، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں ہمارے حلق کے 3 درجے ہیں، 3 فلورس ہیں، 3 فلورس ہیں. اب 3 فلورس میں اب یہاں پر ایک بلڈنگ ہی رکھ لیں آپ. 3 فلورس ہیں. اب 3 فلورس میں اب آپ جائیں گے تو پہلے کہاں سے جائیں گے؟ نیچے سے جائیں گے. تو نیچے سے ہم پڑھیں گے حمزہ حمزہ حمزہ. جی انجم نفیس، سینے کی جانب. ٹھیک ہے، نیکسٹ جائیں گے عین ہا، عین ہا، عین ہا. جیسے کہ میں بتائی تھی آپ کو، عین یعنی کہ زبان کو جو ہے پیچھے کی طرف سے کھینچنا ہے. آ کرتے سمے سامنے رہنی چاہیے ہماری زبان. جب ہم یعنی کہ اس ورڈ کو جو ہے یعنی کہ اس لیٹر کو جو ہے کمپلیٹ کرنے کے وقت جو ہے ہماری زبان کو پیچھے کی طرف سیدھے سے کھینچیں گے، جیسے کہ عین عین. ٹھیک ہے، اور ہا کرتے ہوئے ہماری سانس جو ہے باہر جانی ہے. ہا. ٹھیک ہے، اور سب سے اوپر کا حصہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ ادنى الحلق. ادنا مطلب اوپر کا، بلندی کا، اوپر ہمارے گلے کا پارٹ. دیکھیں یہاں پر غور کریں، یہاں کا اوپر کا حصہ. دیکھیں اوپر کا حصہ. اوکے جی، ادنى الحلق. ادنا ادنا گلے کا اوپر کا حصہ، ادنى الحلق. ٹھیک ہے، اقصى الحلق، وسط الحلق، ادنى الحلق. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جی الحمدللہ. چلتے ہیں، اس کو مشق کریں گے، ان لیٹرز کو جو ہے مشق کریں گے انشاءاللہ. جی دیکھیں اس کو کیسے پڑھیں گے، دیکھیں گے انشاءاللہ. حمزہ. اب دیکھیں ایک بات یہاں پر نوٹ ڈاؤن کر لیں، جب الف کے الف جو ہے خالی رہتا ہے تب اس کا نام الف رہتا ہے. اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش یعنی کہ زبر زیر پیش آ جاتا ہے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، اس کو حمزہ کہتے ہیں. اگر خالی رہا تو الف کا الف الف اس طریقے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ جان لی بات آپ نے. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو اب اس کو کیسے پڑھتے ہیں ذرا غور سے سنیں، ذرا غور سے سنیں. دیکھیں سارے لہجے یعنی کہ سارے طریقے یہاں پر الحمدللہ کلاسز میں آپ کو عربک میں سکھایا جائے گا اور اس سے اچھی طریقے سے سمجھایا جائے گا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں تجوید لیا جا رہا ہے. اب تجوید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجوید اور مخرج کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم کو عرب کے لہجے سے عرب جیسے ریسائٹ کرتے ہیں قرآن کو اسی طریقے سے اگر ہمیں آنا ہے تو ہمیں تجوید اور مخرج کی ضرورت ہے، اور قرآن کو جو ہے عرب کے لہجے سے ہی ہم کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ضروری ہے. وہ کیسے پڑھتے ہیں، حرفوں کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں، وہ کہاں سے نکالتے ہیں، ہم دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک کر کے سب کچھ باریکی سے دیکھتے ہوئے اس کو کیا کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو غور کریں میں کیسے پڑھتی ہوں، تھوڑا غور کریں. دیکھیں یہاں پر، دیکھیں یہاں پر اس سینٹنس کو میں پڑھ رہی ہوں، ذرا غور سے سنیں. حمزہ
اب अलीफ के ऊपर हरकत है इसीलिए वो हमजा बन जाता है, ठीक है। हमजा फतहा, हमजा सुकून आ आ, हमजा कसरा, हमजा सुकून ई, हमजा दम्मा, हमजा सुकून ओ, आ ई ओ, ठीक है। अब यहाँ पर हम फतहा, कसरा, दम्मा, यानी कि गौर करें, अगर से आप बराबर सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जबर को फतहा, 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 और जेर को कसरा, कसरा, और पेश को दम्मा, दम्मा, फतहा, कसरा, दम्मा, फतहा जबर को, कसरा जेर को, दम्मा पेश को कहा जाता है अरब में। तो हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अ ई ओ हो गया। अब यहाँ पर आ जाएं हम हा की तरफ। हमजा फतहा हा सुकून अह, हमजा कसरा हा सुकून इह, अह इह, हमजा दम्मा हा सुकून ओह, आह इह ओह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं आगे की तरफ जी। अब यहाँ पर देखें हा और आइन को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, जरा गौर से सुने। अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। देखिए अब ये दोनों जो है वस्तल हलक से, यानी कि हमारे गले के दरमियानी हिस्से से अदा होने वाले लेटर्स हैं। हा और आइन, हा और आइन। अब इसको यानी कि हमजा आ गया और हा सुकून आ गया। अब यहाँ पर बताया जाता है कि हमारा मखरज सही है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। हमें जो है आगे के लेटर जो है अलीफ के साथ यानी कि हमजा के साथ कोई हरकत रख ले, और दूसरी तरफ वो मखरज यानी कि वो लेटर का मखरज यानी कि कौन सा लेटर हमको पढ़ना है वो लेटर साकिन के साथ रख लें। जैसे कि अब मुझे पढ़ना है हा, और हम मैंने लगा दिया इसको हमजा लगा दिया आगे की तरफ, फतहा के, कसरा के, दम्मा के, कोई सा भी हो, हरकत जो भी हो, लेकिन हमें जो लेटर चाहिए उस पर जो है साकीन होना है, ठीक है। अब कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा हमारा जो मखरज सही है या नहीं। अब गौर करें, चेक करें, देखें हा को तो हमने पढ़ लिया। अब आगे का लेटर जो है हमजा के साथ हरकत में है, तो अब इसको मिलाते हुए क्या मैं दुरुस्त पढ़ रही हूँ? आप अपना जायजा ले, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। जैसे कि अब मैं पढ़ती हूँ, देखो हमजा फतहा है सुकून आह, हमजा कसरा है सुकून इह, हमजा दम्मा है सुकून ओह, आह इह ओह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आई बात। आप पढ़े आह एह ओह, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब आइन को पढ़ेंगे हमजा लगाते हुए। हमजा फतहा आइन सुकून आ, आ, हमजा कसरा आइन सुकून ई, ई, हमजा दम्मा वाव आइन सुकून ऊ, आ, आई, ऊ, हमजा फतहा आइन सुकून आ, हमजा कसरा आइन सुकून ई, हमजा दम्मा व आइन सुकून ऊ, आई, ऊ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आई बात। अब खौ को देखें, अब खौ को भी देखें, हमजा के साथ कोई हरकत लगाकर जे जबर पेश में लगाकर देखेंगे, पढ़ेंगे। सब मेरे साथ पढ़ें। हमजा फतहा खौ सुकून आह, हमजा कसरा खौ सुकून इख, इख,
حمزہ ضمہ خا سکون اخ 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 اخ. جی اب غائن کی طرف چلیں گے. ہاں رازیہ یہ تو موٹا لیٹر ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا ویٹ کرے سبھی شاید کال آ گیا ہوگا اسی لیے میوٹ ہو گیا. سب تب تک یہ ریوائز کرے جو سسٹر پڑھا رہے تھے. اسکرین تو شو ہو رہی ہے سسٹر, آپ کو نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ خا اور غین کی اسکرین شو ہو رہی ہے نا؟ الحمدللہ جی آواز آ جائے گی الحمدللہ. میرا سسٹر بہت ٹائم ہو گیا نا, پتا نہیں کیوں نہیں آواز آ رہی. کوئی سسٹر سنانا چاہتی ہے یہ مخارج, کوئی بتانا چاہتی ہے تو بتائیں کیسے پڑھیں گے, کیا بتا رہے تھے سسٹر؟ میری آواز آ رہی ہے سبھی کو؟ ہاں بتائیں انجم نفیس. آ گئے سسٹر, آ گئے ہیں. جی ان کا انمیوٹ ہو معاف کر گیا. لیں معاف کر لیں تھوڑی کھانسی بالکل شروع ہو گئی. جی جی ٹھیک ہے سر. جی الحمدللہ. تو خواہ جو ہے موٹا پڑھیں گے اور غائن بھی جو ہے موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو حمزہ فتح غائن سکون آغ, حمزہ کسرہ غائن سکون ایغو, حمزہ ضمہ غائن سکون اوغ آغ ایغ اوغ. ٹھیک ہے, یہ بھی موٹا پڑھیں گے. اور اس کو ادنى الحلق یعنی کہ گلے کے اوپر کے حصے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. جی الحمدللہ. تو الجوف ہو گیا, الحلق ہو گیا. اب الحلق میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے ٹیکسٹ کریں. اب ایک ٹائم ریویژن کرانا ہے تو میں کرا دوں گی. کسی کو ڈاؤٹ ہے یا کلیئر ہے سب کے لیے؟ جی سب کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا؟ جی الحمدللہ. اب چلیں گے اللسان کی طرف. جی الحمدللہ. اب اللسان. جی سہرا ندف انشاءاللہ میں لاسٹ میں آپ سے کوسچن کروں گی. انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا آپ کے سوالوں کا جواب دینے کا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. چلیں اب اللسان, the tongue. اللسان
अल-लिसान, अल-लिसान, अल-लिसान का मतलब क्या है? जुबान, जुबान, हमारी टंग, ठीक है। अब अल-लिसान में जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लेटर्स आते हैं, सारे बहुत सारे, यानी कि जो मैं बताई 5 टाइप्स ऑफ मखरज, 5 जो मखरज ही बुनियादी मखरज हैं, उसमें से ज्यादातर हुर्फ जो है जुबान से ही आते हैं। जुबान से निकलने वाले 17 लेटर्स हैं, 17 लेटर्स हैं। इंशाल्लाह एक एक करके हम देखेंगे वो कौन सी जगह है, उस जगह का नाम क्या है, उन मुकाम का यानी कि वो आर्टिकुलेशन पॉइंट्स का नाम क्या है, वो कैसे निकालना है। इंशाल्लाह हम एक एक करके नाजुक के साथ इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज जो है अल-लिसान, 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 अख्सल लिसान, अख्सा जैसे कि अख्सल हलक पढ़ाई थी मैं। अख्सा मतलब गले का दूर का हिस्सा, गले का दूर का हिस्से को कहते हैं अख्सा, अख्सल लिसान। अब यहाँ पर देखें, ये जो येलो कलर में मार्क कर दिया गया है, इसको कहते हैं, उस पार्ट को कहते हैं अख्सा, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग। यानी कि हमारी जुबान की जड़ भी कह सकते हैं उसको। हमारी जुबान की जड़ यानी कि जहां से हमारी जुबान स्टार्ट होती है, स्टार्ट होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्लियरली बताया जा रहा है अक्सर लिसान कहाँ पर है। येलो कलर का जो पार्ट दिखाया जा रहा है उसको अक्सर लिसान कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वसतुल लिसान, वसतुल लिसान हमने वसतुल हलक भी पढ़ा था। वसतुल हलक का मतलब क्या है? हलक का दरमियानी हिस्सा। इसी तरह से वसतुल लिसान जो है हमारी जुबान का दरमियानी हिस्सा। हमारी जुबान यहाँ पर है, देखो ये दरमियानी हिस्सा, ठीक है। और हाफ लिसान, हाफ लिसान का मतलब क्या है? ये जस्ट देखो ये साइड यहाँ पर है, देखो ये साइड्स को कहती हाफा, हाफा साइड्स, किनारे, किनारे भी कहती साइड्स। हाँ करवट, जी अल्हम्दुलिल्लाह रोजी आपने सही कहा, करवट, करवट जो जुबान की करवट है उसको कहते हैं, ठीक है। और चौथा जो है तरफुल लिसान, यानी कि तरफुल लिसान, यानी यहाँ पर देखें क्लियरली ग्रीन में यहाँ पर देखो मार्क करके बता रहे हैं तरफुल लिसान, टिप ऑफ द टंग, तरफुल लिसान। ठीक है, ये जो पार्ट है देखो ये पार्ट जो है उसको कहते हैं तरफुल लिसान, टिप ऑफ द टंग, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा, मेरे साथ बोले, सब मेरे साथ बोले, अक्सल लिसान, वसतुल लिसान, हाफा लिसान, तरफुल लिसान, अक्सल लिसान, वसतुल लिसान, हाफा लिसान, तरफुल लिसान, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप चलते हैं एक एक करके देखेंगे कि कौन सा हर्फ जो है कहाँ पर फिट होता है, अक्सा में, तरफा में, हाफा में, कौन सा लेटर कहाँ फिट होता है इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। चले, ये खौफ, खौफ जो है मोटा लेटर है एक, दूसरा जो है ये अक्सर लिसान से अदा होने वाला है, अक्सा, यानी कि देखिए यहाँ पर जुबान का जो जड़ है जिसे मैं बताई थी अक्सर लिसान से अदा होने वाले ही, तो ये अक्सर लिसान से अदा होने वाला है, अक्सा, अक्सा, अख, ठीक है। देखिए अब ये हमारी जुबान है, अच्छे से नोट डाउन करें यहाँ पर, देखिए ये हमारी जुबान है। अब ये दरमियानी हिस्सा, ये जो है ये दूर का हिस्सा, जुबान का दूर का हिस्सा, अक्सा, अक्सर लिसान। अब ये जुबान यहाँ पर जो है इसको हम बुलंद करेंगे माउंटेन की तरह। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ क्लियरली बताया जा रहा है
यहाँ पर किस तरीके से मोटा हो रहा है, जो हमारे जो सॉफ्ट रहता है, यानी कि हलक के एज में जो सॉफ्ट रहता है, जो सॉफ्ट पार्ट रहता है, एरिया रहता है, वहां जो है क्लोज होना, हमारी जुबान ऊपर बुलंद होकर उस सॉफ्ट जगह को क्लोज करना, ठीक है, तब जाकर इस खौफ को हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि खौफ, 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 बुलंद करें अपनी जुबान को, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। खौफ, 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 खौफ। जी, जुबान की जड़ बुलंद होना चाहिए। एक दूसरा जो है उसको कैसे पढ़ेंगे, हम मोटा पढ़ेंगे, ठीक है, उस सॉफ्ट जो पार्ट है वहां पर हमारी जुबान की जड़ टच होती है। खौफ, खौफ, खौफ। इसको काफ की तरह नहीं पढ़ेंगे, बारीक नहीं पढ़ेंगे, इसको मोटा ही पढ़ेंगे। और ये जो है खलखले का लेटर भी है, ये जो है खलखले का लेटर भी है, इसको कैसे पढ़ेंगे, अक, इक, उक, इस तरीके से नहीं पढ़ना। अब जब ये हमजा फतहा खौफ सुकून में आ जाता है, यानी कि वो फतहा के साथ आ जाता है साकिन लेकर, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, अक, इक, उक। पढ़े मेरे साथ। ये खलखले का लेटर है। खलखला मीन्स टकराना, हुरूफ एक दूसरे को टकराती। जैसे कि मैं बार बार यही एग्जाम्पल बताती हूँ कि जब दीवार पर एक बॉल फेंके तो हमारी तरफ जैसे लौट कर आता है, उसी तरीके से ये हुर्फ को पढ़ने से हमारी आवाज जो है पलटकर हमारी तरफ आती है। जी, दोबारा लौट के आने वाली आवाज, आवाज का लौटना, जी, एको होना। माशाल्लाह, माशाल्लाह, मेरी प्यारी प्यारी बहनें बहुत अच्छे से सुनकर हैं। हाँ, आवाज वापस लौट कर आती है हमारी। जी, पढ़े मेरे साथ। अक, हमजा कसरा कौफ सुकून इक, हमजा दम्मा कौफ सुकून उक, अक, इक, उक। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से समझ में आया। जी, आप चलते हैं दूसरे लेटर की तरफ। जी, काफ, काफ का घर भी वहीं पर है, जो एड्रेस जो है खौफ के घर का है, उसी के घर में ये भी रहता है, ये भी रहता है। कफ, कफ भी जो है वहीं पर रहता है, अक्सल लिसान ही से अदा होने वाला है, इसका एड्रेस भी जो है अक्सल लिसान ही है। लेकिन ये जो है एक तो बारीक, दूसरा इसमें खलखला नहीं होगा, हम्स होगा, और तीसरा जो है इसको पढ़ते हुए यानी कि वो सॉफ्ट थोड़ी पीछे की तरफ रहता है, थोड़ी आगे की तरफ ये रहता है, जहां पर हार्ड हमारा हलक जो है सख्त तालू जो है वहां से अदा होता है। जैसे कि कफ, 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 यानी कि कैफे, कैफे। ऐसे कॉफी को कैसा कैसा नाम देती, कैफे, कैफे, इस तरीके से कफ, कफ, कफ। ठीक है जी, कम टच करना। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। When we touch the root of the tongue on the hard palate, then we make kaf letter sound. Kaf, इसको बारीक पढ़ेंगे, और इसको हमजा लग जाता है, यानी कि फतहे के साथ या कसरा के साथ, दम्मा के साथ, तो इसका प्रॉपर मखरज हमको पता चल जाएगा, क्या हम सही सही से इसको अदा कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पर देखें, हमजा फतह काफ सुकून अक, अक, हमजा कसरा काफ सुकून इक, हमजा दम्मा काफ सुकून उक, अक, इक, उक। थोड़ा सा हम्स होना इसमें, ठीक है, खलखला नहीं, जैसे कि अक, उक, इक, इस तरीके से नहीं, अक, इक, उक। ठीक है, समझ में आया। हम्स जैसे कि अजान की, जैसे कि मैं बार बार आपको एग्जांपल देती हूँ, कैसे पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अक, अक। ठीक है,
جی सांस जो है जारी होना यानी कि जरिया नफ्स, ठीक है, समझ में आई बात ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह सबको अच्छे से समझ में आया। अब चलते हैं दरमियानी हिस्सा, जुबान का दरमियानी हिस्सा, उसको जो है क्या कहते हैं? लिसान, वस्ता, वस्तल लिसान, वस्तल लिसान, वस्तल लिसान। जी वस्तल लिसान, दरमियानी हिस्सा, मिडिल पार्ट ऑफ अवर टंग, ठीक है, प्रोनाउंस फ्रॉम द मिडिल ऑफ द टंग एंड द मिडिल ऑफ द पैलेट। देखेंगे इंशाल्लाह, अच्छे से गौर से सुनो। हमारी सारी बहनें जो है माशाअल्लाह क्या है, बहुत टैलेंट है, सारे के सारे बहनें जो है माशाअल्लाह बहुत अच्छे से जवाब भी दे रही हैं, बहुत अच्छे से कोऑपरेट भी कर रही हैं। तो मुझे क्या हो रहा है, एनर्जी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान तआला आपके इल्म में इजाफा अता करे, आपका सीखना समझना जो है बहुत आसान करे, अल्लाह सुब्हान तआला आपको बेहतरीन कारियों में से बनाए, आमीन। चले इंशाल्लाह अभी जो है ये एक देख लेते हैं, जीम, शीन और या, जीम, शीन और या। अब पहले चलते हैं जीम की तरफ। हम्म? जीम जो है इसको कैसे अदा करते हैं? इसको कैसे अदा करते हैं? जी शजरिया, जी अल्हम्दुलिल्लाह हुर्फ़े शजरिया भी है। जीम जो है दरमियानी जुबान और दरमियानी तालु, देखो यहाँ पर दरमियानी तालु, दरमियानी जुबान, यहाँ पर देखो ये दरमियानी जुबान जो है दरमियानी तालु को जाकर टच करना, ठीक है। जीम, जीम पढ़े मेरे साथ, जीम अच्छे से टच होना, हमारी दरमियानी जुबान जो है ऊपर तालु की तरफ अच्छे से टच होना, जीम, जीम। अब इसको फतहा के साथ हमजा है, कुछ हरकत यानी कि मैं आपको हर लेटर पे बता रही हूँ कि देखिए यहाँ पर हमजा फतहा जीम, जीम सुकून अज, अज, हमजा कसरा जीम सुकून इज, हमजा दम्मा जीम सुकून उज, अज, उज, इज, ठीक है। अब चलते हैं शीन की तरफ। शीन सेम 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 मखरज है, जीम जहां पर रहता है शीन भी वहीं पर रहता है, लेकिन जीम जो है अच्छे से बुलंद हो जाता है, तालु को टच करता है, लेकिन शीन में जो है इतना तो गैप रहता है, देखो इतना तो गैप रहता है, ठीक है, इतना गैप रहता है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, इतना गैप तो रहता है वहां पर। देखिए एक छोटा वहां पर व्हाइट कलर का दिया गया है कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि इतना गैप रहे, तो देखो यहाँ पर इतना गैप होना चाहिए, शीन, शीन। और ये बहुत आसान लेटर है और ये बहुत प्यारा लेटर भी है, खूबसूरत लेटर भी है, जब भी किसी वर्ड में आता है तो वो वर्ड जो है बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो शीन जो है पढ़ते हुए बहुत आसानी होती है और इसको पढ़ते हुए हमारी यानी कि आवाज जो है स्प्रेड होती है, स्प्रेड यानी कि जैसे कि परफ्यूम मारे इश, तो एक ही जगह नहीं लगती, वो ऐसे ही फैलता है, नहीं इसी तरीके से अश, इश, उश, अश, इश, उश, अश, इश, उश, हमजा फतहा शीन सुकून अश, همزة كسرة شين سكون إش، همزة ضمة شين سكون أش، أش، إش، أش। अब चलें या की तरफ चलते हैं। अभी जीम जो है दरमियानी तालु से दरमियानी हिस्से का यानी कि ये जुबान जो है टच करना था, अब ये जुबान या, अब यहाँ पर देखें अच्छे से गौर करें, या यहाँ पर देखें गैप भी कितना है,
गैप भी कितना है, बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए अलिफ, वाव और या जो है मुंह के खाली हिस्से से या अदा होती। अब यहाँ पर या देखो खाली है, कहीं पर भी कुछ भी टच नहीं हो रहा है। या 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 ये गैर मद्दा है, यानी कि अब इसको हमजा के साथ कैसे पढ़ेंगे? हमजा फतहा या सुकून आई, हमजा कसरा या सुकून ई। जी, सीन में सीटी की आवाज आना है, लेकिन शीन में नहीं, ठीक है? शीन में नहीं आएगी, ये तफस्सी लेटर। अश यानी कि हमारी आवाज जो है फैलेगी। इश, उश, अश, इश, उश, आई, ई, अज, इज, उज। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको समझ में आया होगा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल-जौफ, अल-हलक, अल-लिसान को देख लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है इंशाअल्लाह दूसरा जो लिसान के ही लेटर्स हैं इंशाअल्लाह जाएंगे। उससे पहले देखिए आपके लिए ये होमवर्क है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके आए कि दांतों के नाम, दांतों के नाम देखिए 1 2 3 4 5 6 6 नाम ही इन दांतों के, इन दांतों को जो है अच्छे से याद कर कर आए, और कौन से दांत का क्या नाम है वो भी अच्छे से याद करके आए, क्योंकि ये दांतों के नाम जो है आगे के लेटर्सों को इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं अरबिक में बताऊंगी सनाया उलिया, तो आप हैरान रहेंगी कि ये सनाया उलिया क्या है, ये सनाया सुफला क्या है, तो आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है? अगर आप अभी पढ़कर आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अल-लिसान के लेटर्स जानने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है। चले इंशाल्लाह एक मर्तबा मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है? देखिए अब ये सनाया है, एक मिनट, सनाया, सनाया के 4 लेटर्स हैं। अब ये सनाया के 4 लेटर्स कौन से ही, यानी कि कौन से दांत ही, कौन से दांतों के नाम ही इंशाल्लाह देखेंगे। ये जो है ग्रीन, ग्रीन कलर का जो है इसको सनाया कहती, सनाया। अब ये सनाया जो है ऊपर के 2 दांत, सामने के नीचे के 2 दांतों को सनाया कहते हैं। अब सनाया उलिया यानी कि ऊपर, उलिया का मतलब ऊपर के 2 दांत, सनाया उलिया। अब नीचे के 2 दांतों को सनाया सुफला, सनाया उलिया, सनाया सुफला, सनाया उलिया, सनाया सुफला। सुफला यानी कि नीचे के 2 दांत, सुफला यानी कि ऊपर के 2 दांत, सनाया, ठीक है? और चलते हैं अभी, जी तुबा, ऊपर के 2 दांतों को सनाया उलिया, नीचे के 2 दांतों को सनाया सुफला। बोले मेरे साथ साथ, ऊपर के 2 दांतों के नाम सनाया उलिया, नीचे के 2 दांतों के नाम सनाया सुफला। अब एक मर्तबा बोले, यानी कि ऊपर के सामने के 2 दांतों के नाम सनाया उलिया, नीचे के दोनों 2 दांतों के नाम सनाया सुफला, सामने के, ठीक है? अच्छे से प्रैक्टिस करें और चलते हैं रुबाइया की तरफ। रुबाइया, 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 यानी कि रबाइया जो है 4 हैं, जो रेड कलर में यहाँ पर मार्क किया गया है उसको कहते हैं रबाइया, वो भी 4 हैं, 4 हैं, ठीक है? उस यानी कि जो ग्रीन कलर के सनाया उलिया ही, उसके फौरन बाद जो है क्या है, रेड कलर दांती, इधर एक, राइट में एक, लेफ्ट में एक, ऊपर भी इसी तरीके से ही, यानी कि राइट में लेफ्ट में, इन दोनों दांतों का नाम जो है रबाइया, रबाइया, ठीक है? और जो ब्लू कलर में यहाँ पर दिया गया है उसका नाम क्या है? 2 ग्रीन हो गए, 2 रेड हो गए, 2 ग्रीन का नाम सनाया, 2 रेड का नाम रवाइया, और 2 ब्लू का नाम क्या है, डार्क ब्लू का अनियाब, अनियाब। 4 ही, ऊपर के 2, नीचे के 2, अनियाब, अनियाब, अनियाब। समझ में आई बात? ठीक है। और जो स्काई ब्लू कलर का है, लाइट ब्लू, उसका नाम जो है
दवाहिक, दवाहिक। अब ये भी 4 है, ए भी 4 है। दवाहिक जो है ऊपर लाइट ब्लू है उसको भी, और नीचे के 2 लाइट ब्लू जो है उसको दवाहिक कहती, दवाहिक। ठीक है। और जो येलो में है, जो 12 दांत, यानी कि ऊपर के राइट के 3, लेफ्ट के 3, नीचे के लेफ्ट के 3, राइट के 3, ये कुल मिलाकर हो गए 12। इसका नाम जो है तवाहिन, 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 12 teeth। ओके जी। और उसके बाद लास्ट के जो अखलदाड़ कहती, नहीं अखलागी, अखलागी, जब वो दांत आता है तो सारे के सारे कहती जो अखल वाला हो गया, चल तुझे अखल दांत आ गया। तो इसका नाम जो है नवाजिज, नवाजिज, जो ऑरेंज कलर में दिया गया है, या तो इसको देखो नवाजिज, नवाजिज। ठीक है। ये 4 दांत थी, 4 दांत, ऊपर के 2, नीचे के 2, लास्ट के। ठीक है। इसका नाम नवाजिज, सनाया, रबाइया, अनियाब, दवाहिक, तवाहिन, नवाजिज। सनाया बोले, सब के सब बोले मेरे साथ, सनाया, रबाइया, अनियाब, दवाहिक, तवाहिन, नवाजिज। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबको अच्छे से समझ में आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह क्लास मुकम्मल करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह फिर से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।